Good morning students, welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group Kota. So student, today we will discuss about revision of chapter number 1 Python revision tour, chapter number 2 Python revision tour second, and chapter number 3 working with functions, and chapter number 4 using Python libraries. Now student, first of all we discuss about Python revision tour. Yes, student, tokens in Python. The smallest individual unit in a program is known as a token. So students, जो प्रोग्रामिंग में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम क्या बोलेंगे? टोकन. Python has following tokens: कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स जिसको हम नेम्स बोलते हैं, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर. नाउ स्टूडेंट, वेरिएबल एंड असाइनमेंट. सो स्टूडेंट, किसी भी प्रोग्रामिंग का जो पार्ट होता है उसमें वेरिएबल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल एंड असाइन वैल्यू. Variables represent labeled storage location whose value can be manipulated during program run. In Python, to create a variable, just assign to its name the value of appropriate type. For example, to create a variable, namely student, to hold student's name, and variables age to hold student age, you just need to write some what similar to what is shown below. For example, student is equals to Amit. Here student is a variable name and Amit is a value. Now second is age is equals to 16. Here age is a variable name and 16 is a value. Means student जो है अमित को point कर रहा है and age किसको point कर रही है? 16 को. Okay. Now multiple assignment. सो स्टूडेंट, अब आपको वैल्यू असाइन करनी है और किस तरह की असाइन करनी है? वैल्यूज मल्टीपल, यानी कि एक से ज़्यादा वैल्यूज यदि आपको असाइन करनी है. सो लेट्स सी, असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल. यू कैन असाइन सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल इज अ सिंगल स्टेटमेंट. आप ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 10. मीन्स तीनों की वैल्यू कितनी है? 10. इट विल असाइन वैल्यू 10 to all three variables a, b, c. Assigning multiple value to multiple variables. You can even assign multiple value to multiple variables in single statement. Now x, y, z is equals to 10, 20 and 30. तो जिस सीक्वेंस में आपने वेरिएबल डिफाइन किए हैं उसी सीक्वेंस में आपकी वैल्यूज भी क्या हो जाएगी? उसमें स्टोर हो जाएगी. नाउ इट असाइन द वैल्यू ऑर्डर वाइज. इफ यू वांट टू स्वैप वैल्यू ऑफ x एंड y, यू जस्ट नीड टू राइट एन राइट एज फॉलोज x, y is equals to y, x. मीन्स स्टूडेंट, आपको वैल्यू स्वैप करनी है. मीन्स x की वैल्यू y में और y की वैल्यू x में आपको पॉइंट करनी है. तो उसके लिए आप क्या कर देंगे? जस्ट इनकी जो वेरिएबल नेम है उसको जस्ट अपोजिट करके लिखेंगे. नाउ स्टूडेंट, next is simple input and output. In Python, to get input from user interactively, you can use built-in function input. So student, आप input function का use करके क्या कर सकते हैं? जो input है user से आप input enter करा सकते हैं. The function input is used is the following manner. The syntax of input function is variable to hold the value is equals to input from to be display. For example, name is equals to input. What is your name? The input function always return a value of a string type. Python offer two functions, int and float, to be used with input to convert the value received through input into int and float type. So student, जो values हमें input function के थ्रू मिलती है वो कैसी होती है? string type की. Suppose यदि आपको value integer type में या floating type में लेनी है तो उसके लिए आप function use करेंगे int and float. Read in the values using input function and then use int and float function with the read value to change the type of input value to int or float respectively. Now आपने लिखा marks is equals to float input enter marks. तो enter marks की जो वैल्यू थी वो पहले किस में आई है? स्ट्रिंग में, और उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्लोट में. नाउ रिजल्ट इज 73.5. a is equals to input int input what is your age. तो एज की जो वैल्यू थी पहले स्ट्रिंग में आई है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? स्टूडेंट, इंटीजर में. तो अब वैल्यू में कितनी फाइंड आउट हो गई? 16. नाउ आउटपुट थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट. अब प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हम आउटपुट देते हैं कैसे? लेट्स सी. द प्रिंट फंक्शन ऑफ पाइथन इज अ वे टू सेंड
आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल प्रिंट हेलो। तो ये जो आपने टाइप किया, ये जो आपने वैल्यू आउटपुट करी है वो किस तरह का आउटपुट आया, स्ट्रिंग टाइप का। एंड प्रिंट 17.5, तो ये जो आउटपुट आया वो किस तरह का आउटपुट आया, कैसा, नंबर टाइप का। The print statement has a number of features. It insert space between item automatically because the default value of SEP argument separator character is space. तो आप SEP यानी कि separated argument का यूज करके भी string के बीच में स्पेस दे सकते हैं। जैसे my name is अमित, तो ये डायरेक्ट लिखा है my name is अमित, my name is अमित, और आपने हर एक वर्ड के बीच में सेपरेटर यूज कर सकते हो सेपरेटर की वैल्यू से। तो ये कैसे हो जाएगा, my name is अमित। सो स्टूडेंट राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स क्यूब। तो स्टूडेंट हमें एक नंबर यूजर से एंटर कराना है और उसका क्यूब हमें प्रिंट करना है। जैसे यूजर ने प्रिंट एंटर किया नंबर 2, तो हमने उसका जो क्यूब है 8 वो प्रिंट कराया। लेट्स सी, इंट इनपुट एंटर अ नंबर, तो एक नंबर है वो आपने एंटर कर दिया और किसमें चला गया, नम में। नाउ नम क्यूब इज इक्वल टू नम इंटू नम इंटू नम, तो तीनों जो नम की वैल्यू है, सपोज यहाँ 2 आया था तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तीनों मल्टीप्लाई होंगे और जो वैल्यू होगी इसमें चली जाएगी नम क्यूब में। एंड द फाइनल इज प्रिंट द क्यूब ऑफ नम इज नम क्यूब। तो इसका आउटपुट ऐसा है, जैसे एंटर नंबर, यूजर का फर्स्ट मैसेज है एंटर नंबर, आपने दिया 2। नाउ द क्यूब ऑफ 2 इज 8। ओके स्टूडेंट, नाउ next is data type. Data type are means to identify type of data and set of valid operations for it, numbers, string, list, tuple और dictionary। ये सारे data types हैं जो हमें किसमें मिलेंगे, इन पाइथन में। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स, तो स्टूडेंट ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज इम्यूटेबल टाइप्स। द इम्यूटेबल टाइप्स आर दोज दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस, मीन्स जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे वो सब किस में आएंगी, वो कैटेगरीज होती है इम्यूटेबल टाइप। नाउ इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, नंबर, बूलियंस एंड स्ट्रिंग एंड टपल्स आर द म्यूटेबल टाइप। एंड म्यूटेबल टाइप की हम बात करते हैं, द म्यूटेबल टाइप आर दोज हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड इन प्लेस। ओनली 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेबल इन पाइथन, कौन कौन सी है, लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट्स। तो जो अपनी वैल्यू चेंज कर देते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, म्यूटेबल। और जो पाइथन है उसमें 3 तरह के म्यूटेबल्स है, लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट्स। नाउ statement flow control. Statement may be executed sequentially, selectively or iteratively. A conditional is a statement set which is executed on the basis of a condition. A loop is a statement set which is executed rapidly until the end condition is satisfied. The if condition of Python come in multiple form. First plain if condition, second is if else condition और third is if elif कंडीशन। तो 3 टाइप्स की कंडीशन है जो हमें किसमें देखने को मिलती है, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल के इफ कंडीशन पार्ट में। नाउ हम बात कर रहे हैं प्लेन इफ कंडीशन की, तो उसमें आपने इफ लिखा a कॉलन b, प्रिंट a इज मोर देन b, ठीक है। बट स्टूडेंट यहाँ पर ये कोड आपका एरर देगा, क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पर आपने कॉलन का साइन नहीं लगाया। तो स्टूडेंट आपको कॉलन का साइन लगाना कंपलसरी है जब भी आप इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं या एल्स स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, कॉलन का साइन। तो आप लिखेंगे इफ a इज ग्रेटर देन b कॉलन प्रिंट a इज मोर देन b। नाउ सेकंड हम बात कर रहे हैं इफ एल्स कंडीशन की, तो इफ a इज लेस देन इक्वल्स टू 0 प्रिंट a इज 0 और पॉजिटिव नंबर, एल्स प्रिंट a इज नेगेटिव नंबर। सो स्टूडेंट यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज लूपिंग स्टेटमेंट। तो पाइथन प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ लूप, for loop and while loop. Now we discuss one by one. First is for loop. The for loop of Python is designed to process the items of any sequence such as a list or a string one by one. For element in 10, 15, 20, 25 ये एक लिस्ट है, प्रिंट एलिमेंट प्लस 2 और एंड। तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी इस पाइथन फॉर लूप को स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलिमेंट्स है 10 उसमें 2 ऐड होगा और कितना हो जाएगा 12, फिर एक स्पेस देगा। सेकंड एलिमेंट है 15, 15 में 2 ऐड किया, कितना हो गया 17। उसके बाद थर्ड एलिमेंट है 20, 20 में 2 ऐड हुआ 22, एंड नाउ फाइनली 25 में 2 ऐड हुआ और उसकी वैल्यू कितनी हो गई 27। तो उसका आउटपुट क्या आएगा 12, 70, 22 एंड 27. Now range based for loop, we can specify range function to represent a list as is for val in range 318, print val in the above loop range 318 will first generate a list 3, 4, 5, 16, 17 with which for loop will work. तो स्टूडेंट रेंज फंक्शन क्या करेगा, जब भी आप रेंज फंक्शन में कोई वैल्यू देते हैं तो फर्स्ट वैल्यू से वो स्टार्ट करेगा और जो लास्ट वैल्यू उससे एक कम यानी कि 17 तक ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। और ये बाय डिफॉल्ट कैसे इंक्रीज करेगा, बाय 1 से। नाउ स्टूडेंट देयर आर
3 ways to define a range: range stop, range start stop और range start stop and step. स्टॉप पे आप कोई एक वैल्यू देंगे, सपोज आपने 7 दिया तो 0 to 6 प्रिंट हो जाएगा. स्टार्ट स्टॉप सिर्फ ये वाली वैल्यू होती है, यहाँ से स्टार्ट करना है और 18 पे स्टॉप कर देना है, माने कि एक कम. और स्टार्ट स्टॉप और स्टेप में क्या होगा, स्टेप में आपको कितने से इंक्रीमेंट करना है, वो वैल्यू को 2 से 3 से, वो वैल्यू आप किस में लिखेंगे, स्टेप में. नाउ द स्टेप वैल्यू इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द रेंज. The stop value is never part of the range. The step show the difference between two consecutive value in the range. Now, ये देखो एक some example of range function. Range 7 ये इसका आउटपुट है, range 5 12 तो 5 से स्टार्ट हुआ 11 से, 5 13 2 तो 2 2 का गैप आ गया. 10 to 4 करोगे नो वैल्यू, क्योंकि क्या कर रहा है, 10 से आप स्टार्ट करोगे तो 4 तक कभी पहुंचेगा नहीं वो, ठीक है, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट कितना होगा, बाय डिफॉल्ट 1 1 का पॉजिटिव वैल्यू का इंक्रीमेंट होता है, तो 4 वैल्यू कभी आएगी नहीं. अगर आप बात करें 10 4 -1 की, हाँ ये वैलिड है, क्योंकि आप 10 में जब -1 करेंगे तो 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 6 5 और इस तरह से आप कहाँ चले जाएंगे 4 पे, तो लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4, तो आपको एक कम उससे यानी कि 5th तक इसको प्रिंट करना है. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज व्हाइल लूप. अ व्हाइल लूप इज कंडीशनल लूप that will repeat the information within itself as long as condition remains true. For the general form of Python, while loop is while logical expression or loop body. Okay student, so now we will discuss chapter number 2, Python revision 2 second. String in Python. So student, you know very well what is string. String is a combination of characters. तो characters का combination मिलके क्या बनती है, string बनती है. Now, string in Python are stored as individual characters in continuous location with two-way index for each location. Like many other popular programming languages, string in Python are array of byte representing Unicode character. However, Python does not have a character data type. A single character is simply a string within a length of 1. तो स्क्वायर ब्रैकेट कैन बी यूज टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग. सो स्टूडेंट ये एक स्ट्रिंग है, यदि आप आगे से इसकी लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे से 0 1 2 3 4 एंड 12 तक. यदि आप बैक टू फर्स्ट आ रहे हैं तो -1 से स्टार्ट करेंगे, -1 -2 -3 -4 इस तरह से -13 तक आप इसको फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाएंगे. तो जब फर्स्ट टू लास्ट जा रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर में चलेंगे और लास्ट टू फर्स्ट आ रहे हैं तो नेगेटिव नंबर में आपको आगे बढ़ना है. ओके स्टूडेंट, now item assignment not supported because string in Python are immutable. Immutable है तो उसमें आप डायरेक्ट किसी भी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते. This means that they cannot be changed. If you try to change the contents of an existing string, you find an error that says something like str object does not support item assignment. जैसे आपने लिखा name is equals to hello और name 0 is equals to p, यानी कि 0 पे भी क्या है h और वहाँ क्या लिखना चाहते हैं p, बट पाइथन में स्ट्रिंग इसको सपोर्ट नहीं करेगा. नाउ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर प्लस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर क्या करेगा, प्लस साइन यूज करता है. हमने लिखा पावर प्लस फुल, तो इसका आउटपुट क्या जाएगा, पावरफुल. दोनों स्ट्रिंग को क्या कर देगा, कॉन्केटिनेट कर देगा, मिला देगा. स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर 3 into NO लिखा आपने, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जो NO है वो 3 टाइम रिपीट हो जाएगा, NO 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 इस तरह से, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रिंग स्लाइस. यदि एक बड़ी स्लाइस में से आपने छोटा पार्ट निकाला है स्ट्रिंग का तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइस. नाउ स्ट्रिंग स्लाइस रेफर टू पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग containing some continuous character from the string. जैसे hello string, hello word, तो hello string आपने लिखा 6 to 10, ये पूरा hello word है और ये इसकी एड्रेस है, इसका लोकेशन है कि 0 पे 1 पे 2 पे. आपको कहाँ से चाहिए, 6 to 10 यानी कि 6 to 9 तक आपको इसकी सब स्ट्रिंग चाहिए. तो आपने देखा 6 7 8 9 WORL, ये जो आपको है इससे स्ट्रिंग क्या मिल जाएगी, इस तरह से आपको सब स्ट्रिंग फाइंड आउट हो जाएगी. नाउ स्ट्रिंग फंक्शन, आपने लिखा str rock the word, आपने लिखा str डॉट लेंथ, तो इसकी जो लेंथ है इंक्लूडिंग स्पेस वो आपको बता देगा कि 15 कैरेक्टर्स की इसकी क्या है लेंथ है. नाउ स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइजेशन, आई लव माई इंडिया डॉट कैपिटलाइजेशन, तो जो स्टार्टिंग का जो आपका कैरेक्टर है उसको क्या कर देगा, ये कैपिटलाइजेशन फंक्शन कैपिटल कर देगा. तो इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा आई लव माई इंडिया. ओके स्टूडेंट, नाउ टपल्स इन पाइथन. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टपल्स. तो a tuples is a collection which is ordered and unchangeable. In Python, tuples are written with round brackets. Follows are some tuples in Python. ये देखो, ये empty tuple है, ये single member tuple है, integer tuple है, ये
कैरेक्टर्स की टपल्स है, ये मिक्स्ड वैल्यू टपल्स है और ये स्ट्रिंग टपल्स है, पर टपल्स की जो वैल्यू है वो आप किस में लिखते हो, राउंड ब्रैकेट में। द टपल आर इम्यूटेबल सीक्वेंस, यू कैन नॉट चेंज एलिमेंट्स ऑफ अ टपल इन प्लेस। तो आप उनका जो प्लेस है वो चेंज नहीं कर सकते, किनका, टपल्स का। नाउ क्रिएटिंग टपल फ्रॉम कीबोर्ड इनपुट, अगर आपको टपल्स क्रिएट करनी है कीबोर्ड इनपुट से तो आप लिखेंगे T1 इज इक्वल टू टपल इनपुट एंटर टपल एलिमेंट। आपने एंटर टपल एलिमेंट किया 2 3 4 5 6 7 और जैसे आपने T1 टपल की वैल्यू को प्रिंट किया, ये क्या प्रिंट कर देगा 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से इसने क्या बना दिए, क्रिएट टपल क्रिएट कर दिए। नाउ जॉइनिंग टपल, टू टपल्स को आपको ज्वाइन करना है, मिलाना है, उसके लिए आप प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे। द प्लस ऑपरेटर, द concatenation operator when used with two tuples join to two tuples TP1 135 TP2 678 TP1 plus TP2 now 135 678। now replicating tuple तो वही TP1 into 3, TP1 की वैल्यू थी 135 तो 135 135 135 कितनी टाइम आ जाएगा स्टूडेंट, 3 टाइम आपको दिख जाएगा। स्लाइसिंग टपल सेम वही, आप स्लाइसिंग कर सकते हैं टपल्स की। टपल्स लाइक लिस्ट स्लाइस और स्ट्रिंग स्लाइस are the sub part of the tuple extended out sequence tree start stop। ये एक पूरी टपल्स है जिसमें आपको स्टार्ट एंड स्टॉप की वैल्यू निकालनी है। आपने लिखा T1 3 -3 तो 0 1 2 3 यानी कि 20 से स्टार्ट करना है और -3 कहाँ तक आएगा, -1 -2 -3 यानी कि यहाँ तक लेना है, एक -3 को छोड़ना है -4 तक, 20 22 और 24। तो 20 22 और 24 क्या आ गई, इसकी सब टपल आ गई। नाउ टपल्स फंक्शन एंड मेथड, हम मेथड की बात करते हैं तो फर्स्ट मेथड आता है लेन मेथड। दिस मेथड रिटर्न लेंथ ऑफ द टपल्स। आपने लिखा एम्प्लॉय जॉन 1024 सेल, लेन एम्प्लॉय तो कितनी है 1 2 3 4, तो क्या एंटर कर दिया इसने, क्या आपको आउटपुट दिया एज अ 4। मैक्स मेथड, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मैक्स मेथड के थ्रू क्या आ जाएगी, मैक्स TP1, तो जब सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको शो हो जाएगी। मिन मेथड के थ्रू जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको शो हो जाएगी। इंडेक्स मेथड T1 3 4 5 6.0 T1 डॉट इंडेक्स 5 कि 5 की इंडेक्स पोजीशन क्या है, तो देखो क्या है 0 1 2, तो क्या मिल गया आपको 2। काउंट फंक्शन क्या करेगा कि पर्टिकुलर 2 इसमें कितने टाइम सारा रिपीट हो रहा है वो आपको ये आउटपुट में दे देगा एज आउटपुट। तो देखो 2 कितने टाइम आ रहा है 1 2 एंड 3 3 टाइम आ रहा है, तो आपको एज आउटपुट इसने क्या दे दिया 3 दे दिया। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज डिक्शनरी इन पाइथन। तो पाइथन डिक्शनरी आर अ कलेक्शन ऑफ सम की वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल unordered collection with elements in the form of a key value pairs, these associate keys to values। तो adding element to dictionary, अब how to add a element in the dictionary, let's see। आपने लिखा है employee is a dictionary name colon John, salary colon 10,000, as colon 24, तो ये क्या बन गया की वैल्यू, इनका कॉम्बिनेशन बन गया। आपने लिखा employee department is equals to sale, यानी कि आपने इसमें एक और नया की वैल्यू पेयर क्या किया है, ऐड किया है, जिसमें की तो क्या है डिपार्टमेंट और सेल्स क्या है उसकी वैल्यूज। तो जैसे आप एम्प्लॉय प्रिंट करेंगे तो देखो आपको यहाँ पर एक नया की वैल्यू पेयर मिल गया डिपार्टमेंट सेल। तो नाउ डिक्शनरी फंक्शन एंड मेथड्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लेन मेथड। तो लेन मेथड क्या करेगा, पर्टिकुलर्स की लेंथ बताएगा कि आपकी डिक्शनरी की लेंथ कितनी है, तो उस डिक्शनरी की लेंथ कितनी है 3, तो लेन ऑफ एम्प्लॉय कितना हो गया 3। ओके स्टूडेंट, नाउ क्लियर मेथड, एम्प्लॉय नेम जॉन, सैलरी 10,000, एज 24, एम्प्लॉय डॉट क्लियर, तो क्या हो गया अब आपको ब्लैंक यानी कि खाली जो है वो डिक्शनरी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। गेट मेथड के थ्रू नेम जॉन, सैलरी 10,000, एज 24, डिपार्टमेंट सेल, आपने लिखा एम्प्लॉय 1 डॉट गेट डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट की क्या वैल्यू है सेल्स, वो सेल्स आपको यहाँ पर आ गई। अगर आप की मेथड्स की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉय आपने लिखा नेम जॉन सैलरी और एम्प्लॉयज की, तो जितने कीज हैं वो सारी कीज आपको मिल गई, जैसे नेम सैलरी एज एंड डिपार्टमेंट। यदि आप लिखते हैं एम्प्लॉयज डॉट वैल्यूज तो जो वैल्यूज थी वो सारी वैल्यूज क्या हो जाती है आपको यहाँ पर शो हो जाती। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। नाउ वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 3, वर्किंग विद फंक्शन। A function is a group of statements that exist within a program for the purpose of performing a specific task. A large program is broken down into smaller unit known as function। तो स्टूडेंट जो लार्ज यूनिट बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनको आप स्मॉल पार्ट में जब डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट एक्ट ऑन डेटा एंड ऑफन रिटर्न अ वैल्यू। तो फंक्शन हमेशा क्या करेगा, किसी भी डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और एक वैल्यू रिटर्न करेगा। नाउ
Understanding function. Programming language also support functions. You can create function in a program. Define calc something, हमने एक function बनाया r is equals to 2 into x की power 2 return r और int input enter a number print calc something a. तो ये जो a वाली वैल्यू है ये वैल्यू पहले कहाँ जाएगी x में और यहाँ पर ये वैल्यू आएगी तो ये x की पावर जो भी नंबर है x का वो आएगा उसकी पावर 2 लग जाएगी और जो रिजल्ट आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और r में चला जाएगा और रिटर्न हो जाएगी ये वैल्यू r में. Now next is calling a function. To use a function that has been defined earlier, you need to write a function called statement in Python. आपको क्या लिखना है? Function name, then value to be passed, जो वैल्यू पास कर रहा है. Now program to add two numbers through a function. Define calc sum, दो वैल्यू लिया आपने और इन दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया और रिजल्ट किसमें चला गया? s में. रिटर्न s या नंबर 1 ले लिया आपने, फर्स्ट नंबर फ्लोट टाइप का, नंबर 2 सेकंड नंबर फ्लोट टाइप का. सम इज इक्वल टू कैल्क सम num1 num2. तो ये दोनों वैल्यू जो है अभी यहाँ पर जाएगी और जो इसका रिजल्ट आएगा s में और रिटर्न होगा किसमें आ जाएगा? सम में. नाउ प्रिंट सम ऑफ टू गिवन नंबर इज सम. रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन. कैसे रिटर्न होती है वैल्यू फंक्शन से? हाउ टू रिटर्न अ वैल्यू? लेट्स सी. फंक्शन इन पाइथन में or may not return a value. You already know about there can be broadly two types of function in Python: function returning some value and function not returning any value. तो दो टाइप की फंक्शन वैल्यूज होती है कि या तो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 3 यूजिंग पाइथन libraries. A library refer to a collection of modules that together cater to specific type of need or application. If we create smaller units, these are called module. Related terms in library here, Python standard library. हम Python standard library की बात करें तो this library is distributed with Python that contain module for various type of functionalities. First math module और random module. ये दो मॉड्यूल्स हैं जिनको हम हमारे प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं. नाउ numpy library, this library provides some advanced math functionality along with tools to create and manipulate numeric arrays. And scipy library, this is another useful library that offer algorithm and mathematics tool for scientific calculations. Now student, importing module in a Python programming. To import entire module, यदि आपको पूरा ही मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आप लिखोगे इंपोर्ट मॉड्यूल कमांड. टू इंपोर्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मॉड्यूल तो उसके लिए लिखोगे मॉड्यूल इंपोर्ट ऑब्जेक्ट और कमांड्स. लेट्स सी इंपोर्टिंग सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मॉड्यूल. अभी हमें क्या करना है? मॉड्यूल में से कुछ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट हैं उनको इंक्लूड करना है तो आप लिखेंगे इफ यू वांट टू इंपोर्ट सम सेलेक्टेड आइटम्स not all from a module, from module import object name. To import single object, यदि आपको एक single object import करना है आप लिखेंगे from math import pi. To import multiple object आप लिखोगे from math import square root और power. तो यहाँ आपने दो ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किए, यहाँ आपने सिंगल ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किया. नाउ टू इंपोर्ट ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ अ मॉड्यूल यू राइट से फ्रॉम मैथ इंपोर्ट और स्टार साइन. फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एंड स्टार साइन. Now using Python built-in function. The Python interpret has a number of functions built into it that are always available. You need not import any module for them. आपने लिखा function name. For example input int len, ये पहले से ही प्री-डिफाइन है. इसको ऐड करने के लिए हमें हमारे प्रोग्राम में जब इन फंक्शंस को ऐड करते हैं तो हमें किसी मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नाउ स्टूडेंट, स्ट्रिंग फंक्शन आप लिखा str.join, join a string or character after each member of a string. For example आपने लिखा in colon star point dot join hello, तो आउटपुट में क्या जाएगा? इनके बीच बीच में जो स्टार साइन है वो सब जगह बीच में जब जैसे इसका कैरेक्टर फिनिश होगा बीच बीच में किसका साइन आ जाएगा? स्टार का. नाउ स्टार डॉट स्प्लिट, split a string based or given string or character and return a list containing split string as member. आप लिखा in I like Python dot split, तो क्या हो जाएगा? इसको सेपरेट सेपरेट कर देगा I like Python. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से str split फंक्शन को हम यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग विथ सम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल यूजिंग रैंडम मॉड्यूल. तो Python has a built-in module that you can use to make random numbers. To use random numbers generators in your Python program, you first need to import module random. आपने लिखा import random, तो आपने जो random module है वो import किया अपनी फाइल में. To most
common random number generator function in random module are random a comma b, print random redint 15,35, तो नेक्स्ट वैल्यू का प्रिंट कर देगा ये 16. आपने लिखा import random print random dot redint 3,10 -3, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि आपका जो स्ट्रिप वैल्यू वाला वो कितनी चल रही है -3, तो फर्स्ट वैल्यू 3 में से -3 क्या है तो 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 7, क्योंकि 10 -3 क्या हो जाएगा 7. ओके स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट, आई होप you understood all the topic very well. Thank you.